Hello students, today's date 22/4/2020, day Wednesday, subject Social Studies, class 5, book Time Tales, chapter 2. So today we'll read about latitudes and longitudes. In the last class we have read about latitudes. What are latitudes? Latitudes are imaginary horizontal lines that run from east to west. Yes, the lines are parallels and the distance between two latitude lines is always equal, okay, and they are known as lines of latitude or parallels of latitude. And you can see this latitude is in the 0 degree in 0 degree, that is equator. It is divided into two halves. North pole side is known as northern hemisphere and south pole side is known as southern hemisphere, okay. And you can see that besides the equator and poles there are four more other important latitudes, that are the tropic of cancer, tropic of capricorn, arctic circle and antarctic circle. देखिएगा इक्वेटर और पोल को छोड़ के यहाँ पे सॉरी चार और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है। क्या है वो सब? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या है आपका लैटिट्यूड्स में। चलिए आज हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस दैट रन ऑन ए ग्लोब और a map are called the lines of longitude. They run in north to south directions from the north pole to the south pole. Longitudes are not parallel to each other but are of equal length. The distance between any two longitudes is less at the poles and increases towards the equator. These lines are also known as meridians. The line of longitude that passes through Greenwich near London is called the prime meridian. It is marked as 0 degree. Okay, now see, the imaginary vertical lines that run from north to south are known as lines of longitude, okay. They run from north pole to south pole, and what happened, the distance between the two longitude lines are not same, that is they are close near the poles and little bit there's a gap between the on the equator, okay. See here, longitudes are not parallel to each other. Longitude lines are not parallel to each other but are of equal length. They are of equal length. The distance between any two longitudes, जो भी डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच, वो क्या है, पोल में कम है और इक्वेटर में ज़्यादा है, ठीक है। ये लाइंस को हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच, ये जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये आपका ग्रीनविच नियर लंदन जो है यहाँ से जो पास करता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलता है। उस जगह को हम लोग 0 डिग्री माना जाता है। जैसे देखिए लैटिट्यूड में 0 डिग्री किसको बोला जाता है, इक्वेटर को, राइट। पर लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को बोला जाता है। ये आपका कहाँ है, ये आपका ग्रीनविच लंदन में है, ओके, जो ग्रीनविच लंदन से पास करता है नियर लंदन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। गॉट इट? समझ गए। लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है जो आपका नॉर्थ से साउथ क्या करता है, रन करता है, और इसका जो लाइन्स है वो पैरेलल नहीं है बट इनका लेंथ क्या है, सेम है। longitudes are not parallel to each other but are of equal length, ठीक है। the distance between any two longitude is less at the poles and increase towards the equator. The prime meridian divides earth into two halves. The prime meridian अर्थ को क्या में प्राइम मेरिडियन अर्थ को कितना भाग में डिवाइड करते हैं, टू हाफ्स में। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सॉरी एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द मेरिडियंस टू द ईस्ट आर मार्क्ड एज डिग्री ईस्ट एंड दोस ऑन द वेस्ट एज डिग्री वेस्ट। देखिएगा जैसा लैटिट्यूड को टू हाफ में डिवाइड जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड को टू हाफ में डिवाइड करते हैं, जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री वो अर्थ को डिवाइड करता है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसे हम डिग्री ईस्ट और डिग्री वेस्ट से हम लोग उसे मैप या ग्लोब में जाने पहचान में आता है। ओके, लोकेटिंग प्लेसेस। So we have understood about latitude and longitude. Now we will move to about locating places. These latitudes and longitudes on a globe or a map form a network called grid. इस प्रकार से ग्रिड बनता है, latitudes and longitudes on a globe, ओके। ये मैप और ग्लोब में आप देखिएगा latitudes और longitudes ग्रिड के रूप में दिखाया जाता है, उसे हम ग्रिड बोलते हैं। एक नेटवर्क में दिखाया जाता है जिसे हम ग्रिड बोलते हैं। This grid helps in locating any place on earth. The point of intersection of any latitude or longitude is called the coordinates. Coordinates are used for finding the exact location of a place on earth. For example, a place lies at 40 degree north latitude and 74 degree west longitude. The point where these lines will meet will be the exact location of the place.
The lines meet at New York, so New York City lies at the coordinate 40 degree north and 74 degree west. Okay, जैसे देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे लोकेटिंग प्लेसेस के बारे में, तो जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इस हम लोग जब ग्लोब में देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लाइंस है वो एक नेटवर्क की तरह दिखते हैं, उसे हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रिड है ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन मैप या ग्लोब में ढूंढने में मदद करता है। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा मान लीजिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो लाइन है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब क्रॉस करता है, जो जो जगह को छूता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हमें अर्थ में एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में मदद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस लाइज एट 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो क्या होता है, द पॉइंट जहाँ पे ये लाइंस गिरता है वो क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है वो जगह का। इसलिए जैसा यहाँ पे बोला गया न्यूयॉर्क, द लाइंस मीट इन न्यूयॉर्क, सो न्यूयॉर्क सिटी वो कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 74 डिग्री वेस्ट। इन द मूवीज आई थिंक यू हैव सीन द पीपल इन द like in the army movies, you have heard about these coordinates, right? They talk about coordinates, they talk about location, you have seen in the movies and all this. So just try to understand, figure out what is how like the people used to locate place with the help of coordinates. Okay, do you know the first person to reach the north and south pole were Robert Edwin Peary? रॉबर्ट एडविन पेरी क्या था, वो पहला इंसान था जिसने नॉर्थ और साउथ पोल में पहुंच पाया। 6 अप्रैल 1909 एंड रोनाल्ड एमंडसन 14 दिसंबर 1911 रेस्पेक्टिवली। पहले था आपका रॉबर्ट एडविन पेरी जो 6 अप्रैल 1909 में साउथ पोल और नॉर्थ पोल पहुंच के आए, फर्स्ट पर्सन था। उसके बाद था रोनाल्ड एमंडसन जो 14 दिसंबर 1911 में वही मतलब वो भी पहुंच के आए। तो एक वैल्यू कॉर्नर है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इंपॉर्टेंस डू द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होल्ड। ओके, बस बोला गया है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब हम सबों के लिए। ओके, लाइक बियॉन्ड बॉर्डर्स, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स थ्रू द पैसिफिक ओशन। When you move to the west of the international date line, you lose a day, and when you move to the east to the international date line, you gain a day. ओके, एक इंटरनेशनल डेट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो आपका पैसिफिक ओशन में रन करता है। ठीक है, जब आप इससे व्हेन यू मूव टू द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, जब आप इससे वेस्ट तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, आप एक दिन खो बैठते हैं। अगर आप उसी जगह ईस्ट तरफ मूव करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन में, तो आपके आपको एक दिन मतलब प्लस और 1 डे मिल जाता है आपको। अगर आप पैसिफिक ओशन में वो इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर आप है इमेजिनरी लाइन में खड़े रहते हैं, अगर आप उसका वेस्ट तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आपका एक दिन कम जाता है। अगर आप फिर आप इस तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ओके, सो की टर्म्स, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर क्या है, 1/2 ऑफ द अर्थ एज डिवाइडेड बाय द इक्वेटर और द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, दिस आर द की टर्म्स. I just want you to read this chapter properly, latitudes and longitudes, at home, and try to remember these key terms. Okay, this is your homework. Thank you, class.